Well, good afternoon, everyone. Welcome back to Data Structures Theory session. We have started linked list. In a previous session, we looked at what is linked list and how it works or how it looks. We looked at how we can traverse that linked list, and based on the traversal process, we have seen few more operations like search a value, count number of nodes, display your entire linked list and all. After that, we have started insert operations like insert anywhere within a linked list. It can be insert first, insert last, insert before, insert after, insert at position, maybe insert in a sorted list if you are maintaining it, right? And we have seen insert first, how we can perform insert first, and how we can perform insert last also. Inserting a value in linked list needs to create new node and then maintain those links properly so that you position your node in between. That's what the process you have to perform. That was insert last, and that's what we have seen till now. Next one, let us discuss insert at some given position. Now here what you'll have is you will have start always, जहां से आपका लिंक लिस्ट स्टार्ट होता है, मतलब पहले नोड का एड्रेस आपके पास रहेगा. And user says I want to insert a value, a new value, let's say x. I want to insert a new value. वो कोई भी वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 4 5 anything. And user is going to give you the position at what place he or she wants to insert a new value x. वो आपको position देगा. The first node is position 1, second node is position 2, third node is position 3 and so on. तो जिस तरह से आप number of node count करते हो उसी तरह से आप position भी count कर सकते हो, right? So fine, अगर यूजर बोलता है कि फोर्थ पोजीशन पे मुझे नई वैल्यू डालनी है, then you have to traverse a linked list till that position. फोर्थ पोजीशन पे अगर नया नोड डालना है आपको तो उस पोजीशन तक तो आपको जाना पड़ेगा. वहां तक पहुंचोगे तो पता चलेगा कि ठीक है कौन सा नोड है, कहां बीच में मुझे नया नोड डालना है. So we have to traverse a linked list and then we can decide, okay, at this place I'm going to insert. Now what if user says position 1? What if user says position 1? तो traverse करने की जरूरत नहीं. position 1 मतलब position 1 मतलब insert first. What is insert first? This is what insert first is. कितना कोड लिखना पड़ेगा? So we know what is insert first. We know how to handle insert first. This is the code we have to write there. आप insert first function भी कॉल कर सकते हो, लेकिन एक फंक्शन से के अंदर से दूसरा फंक्शन कॉल करना उससे तो अच्छा है कि ये 3 लाइन वहीं पे लिख लो, right? So well, that case is insert first. If your position is 1, case is insert first. Other case may be having some position 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है. In that case you have to traverse your linked list. So let us assume we have few nodes and we have few values. Now this is what our linked list is right now.
And let us assume, what if user says position is 3? User wants to insert data at third place. So that position is something like 1, 2, 3, and 4. These are the valid positions, and user wants to insert a new node at third place. User wants to insert a new node at थर्ड प्लेस. अगर थर्ड प्लेस पे मैं नया डेटा डालता हूं तो एग्जिस्टिंग थर्ड प्लेस पे जो नोड है वो पुश हो जाएगा. उसको धक्का मार के ये वाला नोड कहां घुसेगा? बीच में घुसेगा. सेकंड और थर्ड नोड के बीच में अगर आप इस नए नोड को डालते हो, देन दैट बिकम्स पोजीशन 3, एग्जिस्टिंग बिकम्स पोजीशन 4, एंड बाद में जितने भी है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी. नाउ रिमेंबर, दीज पोजीशंस आर ओनली फॉर एंड यूजर. मेमोरी के अंदर आप एक भी नोड को हटाओगे नहीं. नोड जहां पे पड़ा है रहने दो, क्योंकि वी आर ओनली गोइंग टू मेंटेन पॉइंटर्स. तो हमें क्या करना होगा? वी आर गोइंग टू मेंटेन दोज पॉइंटर्स. सेकेंड नोड का पॉइंटर अपडेट करो और नए नोड के पॉइंटर में एग्जिस्टिंग थर्ड नोड का एड्रेस डालो. ओके, सो वी आर ओनली गोइंग टू मेंटेन दोज पॉइंटर्स. बाकी नोड जहां पे भी है रहने दो, कोई टेंशन नहीं. सॉरी, हाँ हाँ, करेक्ट. दैट्स व्हाट वी वांट टू परफॉर्म. Physically, we are not going to rearrange any nodes. आप जहां पे बैठे हो, कोई बात नहीं. मैं सिर्फ ये याद रखूंगा कि 1, 2, 3, उसके बाद फोर्थ वाला वो पीछे बैठा है, वो वापस आगे आ जाऊंगा. So I'm going to maintain those pointers. That's it. Actually, I'm going to insert a new node in between 2 and 3. Not physically, by maintaining pointers only. Insert at last में भी आपको जहां मेमोरी मिली नोड रख लो. Then you maintain your pointer. Because when we maintain linked list, we do not bother of the address of that node. जहां मेमोरी मिलेगी मैं उठा लूंगा. उसका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस प्रॉपर स्टोर करूंगा एंड आई एम डन. सो कभी मेरा नोड 1 पीछे होगा तो नोड 2 आगे होगा, नोड 3 कहीं बीच में होगा. ओके, so this is what we want to perform. We need to update pointer. We need to update next pointer of second node. थर्ड पोजीशन में डालना है तो आपको अपडेट क्या करना पड़ेगा? सेकेंड नोड के नेक्स्ट पॉइंटर को अपडेट करना पड़ेगा. थर्ड पोजीशन पे नया नोड डालना है अगर आपको, देन यू हैव टू अपडेट सेकेंड नोड नेक्स्ट पॉइंटर. इफ पोजीशन इज गिवन बाय यूजर तो आप पोजीशन -1 तक ट्रैवर्स करो, चलेगा? यस और नो? You only traverse your linked list up to position -1 because that's where you want to update something. So when you start traversing, you will stop at a second place. अगर position 3 है तो 2 पे रुक जाओगे, position 5 है तो 4 पे रुक जाओगे, position n है तो n-1 पे रुक जाओगे. Your TR will stop at position -1. You have TR, you have N. 2 पॉइंटर्स आपको अपडेट करने हैं, कर लो, आपका प्रोसेस खत्म. So what we do now is we start our TR with start, and along with that we start our counter
with the first position because TR is already first node to counter 1. And then we start traversing our linked list while TR equals to TR points to next. अपने लिंक लिस्ट को ट्रावर्स करो. कब तक करोगे? जब तक आपका काउंटर पोजीशन -1 से कम है तब तक आप चलाओगे. व्हेन योर काउंटर बिकम्स इक्वल्स टू पोजीशन -1, stop. Well, along with this, you also need to take care about यूजर तो कोई भी पोजीशन दे सकता है, 20, 25, 50, 1000. क्या आपका लिंक लिस्ट उतना लंबा है? Before you reach at the position, what if your linked list ends? यूजर ने पोजीशन दिया 50, लेकिन 50 से पहले ही आपका लिंक लिस्ट खत्म हो गया तो क्या करोगे? TR equals to TR next मिलेगा ही नहीं, एरर आएगा. So to prevent that error, we also write, I'm going to traverse my linked list up to either I get my position or linked list ends. So this is how we traverse. Now after we complete the traversal process, we do not know हमें position मिला या linked list खाली हुआ. So we again check if your TR becomes null, then invalid position. Otherwise, you are going to maintain your pointers. You are going to maintain your pointers. Always go for new node first. New node के next में आप क्या डालोगे? TR का next. New node कहाँ पे पॉइंट करेगा? ओके, न्यू नोड कहाँ पे पॉइंट करेगा? 6 पे. 6 कैसे मिलेगा? 4 के नेक्स्ट से. 4 कहाँ पे है? TR में. So we are going to say TR points to next, and then we update TR points to next equals to new node. तो वो दो पॉइंटर्स हमने मैनेज कर लिए यहाँ पे. Don't forget to create a new node first. New node malloc करके create करना है. New node का data भी set करना है. Only then you perform this part. So this is what we need to perform if we want to go for insert at given position. Position -1 तक आप traverse करोगे. अगर position 1 है तो special case पहले ही handle कर लिया. 1 - 1 0 तक ट्रावर्स करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? अगर पोजीशन 2 है तो 2 - 1 1 तक ट्रावर्स करेंगे, मतलब स्टार्ट करके वहीं रुक जाएंगे. और अगर पोजीशन 4, 5, 6, 7 कुछ भी है तो ये ट्रावर्सल लूप चलेगा और वो बताएगा आप वहां तक पहुंचे या उससे पहले लिंक लिस्ट एंड हो गया. सो ऑल पॉसिबिलिटीज आर कवर्ड. बाकी जो भी नई वैल्यू है ब्लाइंडली उसको डाल दो, यू आर डन. नए नोड में उसको डाल दो एंड यू आर डन. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू परफॉर्म. अब हम यहाँ पे सारे केसेस देखेंगे. अगर आपके पास अवेलेबल मेमोरी नहीं है देन ओवरफ्लो, वरना आप क्या करोगे? यू विल टेक अ न्यू नोड फ्रॉम अवेल, अवेल को अपडेट करोगे और नए नोड का डेटा सेट करोगे. उसके बाद आता है व्हाट इफ योर पोजीशन इज 1. इफ इट इज पोजीशन 1 देन इंसर्ट फर्स्ट. इंसर्ट फर्स्ट में क्या करना होता है? न्यू नोड नेक्स्ट इज एग्जिस्टिंग स्टार्ट. स्टार्ट को अपडेट करो, आपका काम खत्म. नए नोड के नेक्स्ट में एग्जिस्टिंग स्टार्ट को डालो और उसके बाद स्टार्ट को अपडेट कर लो नए नोड पे. वो हो गया इंसर्ट फर्स्ट. And then you return.
अगर पोजीशन 1 नहीं है देन यू हैव टू ट्रावर्स. ओके, पीटीआर से स्टार्ट करो, एक काउंटर भी ले लो, एंड देन यू ट्रावर्स योर लिस्ट. व्हाइल लूप कहां तक ट्रावर्स करेंगे? जब तक पोजीशन -1 नहीं हो जाता. अलॉन्ग विद दैट वी नीड टू बी केयरफुल, पीटीआर नल नहीं होना चाहिए. Till that time we are going to traverse, and do not forget to make counter plus plus. So when you traverse, do not forget to make counter plus plus. काउंटर इंक्रीज नहीं करोगे तो ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा. इनफाइनाइट तो नहीं, टीआर अपडेट हुआ तो वो एंड तक चला जाएगा. Excuse me. Yep. So we increase the counter. When this iteration terminates, हम चेक करेंगे. अगर टीआर नल नहीं है तभी आपको पोजीशन मिला. अगर आपको पोजीशन मिला तो नए नोड के नेक्स्ट में टीआर का नेक्स्ट, टीआर के नेक्स्ट में नया नोड. 2 पॉइंटर अपडेट किए, अदरवाइज इट इज इनवैलिड पोजीशन एंड वी रिटर्न. So that is insert at position. एक्चुअल में हम इंसर्ट एट पोजीशन के लिए पोजीशन -1 तक ट्रैवर्स करते हैं. एनी डाउट? यस. No, what is avail? Avail is another linked list being maintained by operating system. Avail is a list of all free memory blocks. आपको अगर मेमोरी चाहिए तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम से मांगते हो. ऑपरेटिंग सिस्टम कहां से देगा? अवेल से देगा. अवेल इज अ अवेलेबल मेमोरी. सो अगर अवेल खुद नल है, दैट मीन्स अवेलेबल मेमोरी है ही नहीं. अवेल अगर नल है तो फ्री मेमोरी नहीं है. फ्री मेमोरी नहीं है तो आपको नई मेमोरी मिलेगी नहीं. अगर नई मेमोरी मिलेगी ही नहीं तो नया नोड कैसे बनाओगे? अगर नया नोड नहीं बनेगा तो न्यू वैल्यू स्टोर नहीं होगी. न्यू वैल्यू स्टोर नहीं होगी, यू सिंपली से ओवरफ्लो. कुछ कर नहीं पाओगे आप. सो अवेल अगर नल है तो ओवरफ्लो मैसेज. ओवरफ्लो क्या हुआ? आपकी मेमोरी ओवरफ्लो हुई. ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? अवेल का पूरा लिस्ट रहेगा. हाँ, जब हम नया नोड वहां से लेते हैं तो लेने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि वो कहाँ डालना है, फर्स्ट, लास्ट, बीच में, कहाँ. सेकंड का एड्रेस अवेल के पास है. एज ऑफ नाउ सेकंड का एड्रेस अवेल के पास है. जब आपको कोई नया नोड चाहिए तो आप अवेल के पास से उठा लोगे. आपने वो यूज कर लिया. अगर आपने वो यूज कर लिया तो अवेल के पास नहीं रहेगा. अवेल शुड बी अपडेटेड. अब अवेल अपडेट होके कहाँ जाएगा? सो इनिशियली अवेल सेकंड पे था, उसके पास रहेगा कि नेक्स्ट अवेलेबल ब्लॉक कहाँ पे है. सो वी से अवेल इक्वल्स टू अवेल पॉइंट्स टू नेक्स्ट. दिस इज अ नेक्स्ट पॉइंटर. right? So that was insert at
position. Let us see one more insert before. बाकी के insert operation I'll leave it up to you. Insert after, insert in a sorted list, वो आप कर पाओगे, I believe, अगर आप practice करोगे. But let's have one more insert operation, insert before. Now here we have start, जहाँ से लिंक लिस्ट स्टार्ट होता है, the first node address. यूजर आपको एक नई वैल्यू देगा जो इंसर्ट करनी है, और यूजर आपको एक और एग्जिस्टिंग वैल्यू देगा जिसके आगे आपको इंसर्ट करना है. सो इट इज समथिंग लाइक इंसर्ट 5 बिफोर 7. इट इज समथिंग लाइक इंसर्ट 5 बिफोर 7. अब 7 आपके लिंक लिस्ट में कहीं पे भी हो सकता है. You have to search 7. लिंक लिस्ट में 7 कहाँ पे है वो आपको सर्च करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन डिसाइड, हाँ 7 मिल गया, उसके आगे 5 को रखूं. दैट्स व्हाट वी हैव टू परफॉर्म. यस, 7 मिलेगा तो पोजीशन मिलेगी, उसके आगे हमें ये इंसर्ट करना है. दैट्स समथिंग लाइक पोजीशन -1. अब हम पोजीशन पे नहीं जाएंगे, अब हम डायरेक्ट डेटा पे जाएंगे. व्हाट इज 7? 7 इज अ डेटा. सो वी विल डायरेक्टली कंपेयर डेटा, बट वो डेटा हम करंट नोड का नहीं, आगे वाले नोड का कंपेयर करेंगे. अगर आगे वाले नोड का डेटा 7 है तो मैं यहीं पे रुक जाऊं. अगर नेक्स्ट नोड का डेटा 7 है तो मुझे यहीं पे रुकना है. दैट्स व्हाट वी थिंक हियर. चलेगा अगर ऐसा नहीं करते हो, अगर करंट नोड का डेटा आप कंपेयर करते हो तो आप 7 पे जाके रुकोगे, आप 7 पे जाके रुक जाओगे, तो उस वक्त आपको प्रीवियस नोड चाहिए होगा. देयर इज वन मोर वे, यू कैन हैव प्रीवियस नोड, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेके कर सकते हो, बट दैट वी विल सी इन डिलीट ऑपरेशंस. एज ऑफ नाउ लेट्स थिंक लाइक दिस. अगर नेक्स्ट नोड का डेटा 7 है तो मुझे अभी रुक जाना है. लेट्स गो फॉर इट. So in that case, let us assume we have a start pointing to the first node and we have few other nodes here. यूजर कोई भी वैल्यू इंसर्ट करता है, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी बोले इंसर्ट करने को हम कर देंगे, लेकिन यूजर ने कहां पे इंसर्ट करने को बोला है आपको? बिफोर सम वैल्यू. सो योर केसेस विल डिपेंड ऑन एग्जिस्टिंग वैल्यू. व्हाट इफ यूजर सेज इंसर्ट बिफोर 2? इंसर्ट बिफोर 2, तो ये क्या हो जाएगा? इंसर्ट फर्स्ट. इंसर्ट फर्स्ट कैसे होता है देख लिया आगे, राइट? तो इंसर्ट बिफोर 2 वेयर 2 इज योर फर्स्ट नोड डेटा, तो ये हो गया आपका स्पेशल केस जहां पे स्टार्ट अपडेट होगा. इफ start points to data is equals to existing value, before that you want to insert a new node, तो इसका मतलब हो गया what you'll do is new node points to next equals to start, and then you will update your start with a new node. ये हो गया आपका insert first. Otherwise we are going to do some process. Now what some process means what? यूजर अगर कोई ऐसी वैल्यू देता है जो आगे कहीं मिलेगी आपको, in that case you have to traverse your linked list. So what we do is we take tr, पहले नोड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पहले नोड का डेटा हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है. And now what we are going to do is we are going to traverse our linked list and we are going to compare
tr पॉइंट्स टू नेक्स्ट, नेक्स्ट नोड जो भी है उसका डेटा चेक करो। नेक्स्ट नोड का डेटा मतलब tr पॉइंट्स टू नेक्स्ट आपको नेक्स्ट नोड देगा, उसके बाद पॉइंट्स टू डेटा मतलब उसका डेटा मिलेगा, एंड वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विद एक्सिस्टिंग वैल्यू। if that data is not equals to existing value, we are going to traverse. Okay, we are going to traverse. लेकिन अब ये भी यूजर के ऊपर डिपेंड करता है यूजर ने कौन सी वैल्यू दी। अगर यूजर ने कोई ऐसी एक्सिस्टिंग वैल्यू दी है जो लिंक लिस्ट में है ही नहीं, now you are going to search that data, but what if that data is not there in your linked list? No, अगर वैल्यू मिलती ही नहीं तो इंसर्ट क्यों करना है? Error. Now we need to handle that error. tr points to next should not become null. tr का नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट का डेटा चेक कर रहे हो आप। अगर नेक्स्ट ही नल हो गया तो उसका डेटा नहीं मिलेगा। सो एडिशनली वी हैव वन मोर कंडीशन, tr next should not be null, only then you can have tr next data which you compare with existing value, और वो भी अगर existing value नहीं मिलता तो आप ये traversal process जारी रखोगे। So what happens here is this is your tr next is 4 मतलब this node, और उसका डेटा आप कंपेयर करोगे एग्जिस्टिंग वैल्यू से। 4 and 7 इक्वल नहीं है, सो यू विल ट्रावर्स। ट्रावर्स करके आगे बढ़ गए। नाउ यू से इफ दिस इज योर tr, तो नेक्स्ट नोड क्या हो जाएगा? दिस वन। उसका डेटा आप कंपेयर करोगे एग्जिस्टिंग के साथ। अगर वो मिल गया तो आप जहां पे हो वहीं पे रुक जाओ। वेयर इज योर tr? वेयर इज योर tr? एट 4। तो अब हमें जो नया डेटा डालना है 5 बिफोर 7 अगर डालना है तो आसानी से हो जाएगा। कैन यू हैंडल बोथ द पॉइंटर्स नाउ इजिली? tr के नेक्स्ट को न्यू नोड पे और नया नोड जो है वो 7 पे। लेकिन पहले हम नए नोड के पॉइंटर को मैनेज करेंगे एंड देन विल गो फॉर tr. So once you complete this traversal process, you are going to check if your tr becomes null, value not found, existing value मिली ही नहीं। अगर वो null नहीं है, then in the else part, न्यू नोड के नेक्स्ट को पहले अपडेट करो। इट्स गोना बी tr next, एंड देन tr नेक्स्ट को अपडेट करो न्यू नोड। That gives you insert before. Okay, so insert before is somewhat a tricky part. Insert after is very much easy. आफ्टर ही अगर करना है तो जो नोड जो वैल्यू चाहिए वहां तक चले जाओ, उसके बाद आसानी से इंसर्ट कर सकते हो। सो अगर आप इंसर्ट आफ्टर की बात करते हो देन नेक्स्ट लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट tr नॉट नल tr डेटा कंपेयर करो, बाकी सेम कोड, बाकी सेम कोड, नो चेंज। हाँ, एक चेंज रहेगा, इंसर्ट आफ्टर में आपको ये देखने की जरूरत नहीं है। व्हाई नॉट?
इंसर्ट आफ्टर में आपको ये स्पेशल केस देखने की जरूरत नहीं है. व्हाई नॉट? इट सेज इंसर्ट आफ्टर. अगर पहले नोड का डेटा ही मैच होता है तो उसके बाद इंसर्ट करना, मतलब जो भी इंसर्ट करोगे वो सेकंड पोजीशन से होगा. सेकंड पोजीशन से होगा तो फर्स्ट तो कभी अपडेट नहीं होने वाला. So in insert after, you need not to have this thing. Baki, same thing. So let's have a look at insert before, जो हमने अभी कंसिडर किया. अवेल इज नल, ओवरफ्लो, वरना अवेल के पास से नया नोड लोगे, अवेल को अपडेट करोगे. लेट मी क्लेरिफाई वन मोर टाइम. अवेल जो है वो अल्गोरिदम में दिखेगा, प्रोग्राम में नहीं. प्रोग्राम में आप malloc स्टेटमेंट यूज करोगे. Once you have a new node, set that data and then check your special case. अगर start data is existing value तो insert first करना है, मतलब नए नोड के नेक्स्ट में start को अपडेट करो and return. Otherwise you are going to traverse. So okay, ptr equals to start. Now here comes that extra variable वाला केस. नेक्स्ट के डेटा को कंपेयर करने के बजाय अगर आप टीआर के डेटा को कंपेयर करते हो तो टीआर कहां पे रुकेगा? 7 पे. आपको चाहिए 4 का एड्रेस, कैसे मिलेगा? सो प्रीवियस नोड का एड्रेस अगर आपको चाहिए तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लो, प्री पीटीआर. प्री पीटीआर, पीटीआर के आगे का. नाउ हाउ विल यू हैंडल दैट थिंग? सो व्हेन वी ट्रैवर्स, हम पीटीआर के डेटा को चेक करेंगे और पीटीआर नल नहीं होना चाहिए, और हम पीटीआर को अपडेट करेंगे नेक्स्ट नोड पे. बट जब हम पीटीआर को जंप करवाते हैं उससे पहले हम पीटीआर का बैकअप रख लें प्री पीटीआर में. तो जब पीटीआर आगे बढ़ेगा उसके पीछे पीछे प्री पीटीआर को खींचता जाएगा. जब पीटीआर जंप करके आगे जाएगा तो प्री पीटीआर को उसके पीछे पीछे लेता जाएगा वो. इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो लिंक लिस्ट है उसमें अगर टीआर पहला नोड है तो प्री पीटीआर नल है. दिस इज हाउ वी स्टार्ट. लेकिन जैसे ही मैं पीटीआर को आगे लेके जाऊंगा तब मैं प्री पीटीआर को भी उसके पीछे पीछे खींचूंगा. पुराने टीआर को बैकअप लो और उसके बाद टीआर को अपडेट करो. दैट्स व्हाट वी डू हियर. पीटीआर का बैकअप प्री में और उसके बाद पीटीआर को अपडेट. तो प्री पीटीआर वाला केस जो है, मतलब पिछले नोड का एड्रेस अब आपके पास प्री पीटीआर में है. You handle your case. If your PTR is not null, then update your pointers. Otherwise, value not found and return. ये दोनों सही है. आप प्री पीटीआर लेके करो तो भी चलेगा, अगर आप नेक्स्ट का डेटा कंपेयर करो तो भी चलेगा. अगर नेक्स्ट का डेटा लेते हो, ओके, तो प्री पीटीआर लेने की जरूरत नहीं है. अगर करंट का डेटा कंपेयर करते हो तो आपको प्री पीटीआर की जरूरत पड़ेगी. एंड बोथ द एग्जांपल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ. Whatever I have written without pre PTR and whatever is there in the slide, it is with pre PTR. So that is insert before. And again, I'll take a pause here. Think about it. Digest this information. If you have any query, you may ask. Huh? Topic बहुत hard है. Well, you have to imagine and you have to practice. जो भी करना है प्रैक्टिस करो तो कैपेबल बन जाओगे इमेजिन करना है. एंड देन यू नीड नॉट टू ड्रॉ एवरीथिंग. तब तक
जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था, ड्रॉ एवरीथिंग इन अ पेज। जो भी आपके दिमाग में आता है, ड्रॉ इट, देन ट्राई टू ट्रेस इट। टीआर कहां से कहां जाएगा उसको ट्रेस करो। अच्छा, पहले नोट से दूसरे पे गया, दूसरे पे तीसरे पे गया, तीसरे पे रुक गया, दिस इज वेयर टीआर इज। अब क्या करना है बताओ? टीआर का पॉइंटर अपडेट करूं या टीआर के पहले वाले नोड का पॉइंटर अपडेट करूं? क्या करना है? देन यू थिंक अबाउट इट। So this is insert before. बोथ आर करेक्ट, आप कोई भी फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट के डेटा को कंपेयर करना है तो भी चलेगा, टीआर डेटा अगर कंपेयर करते हो तो प्री पीटीआर लेना पड़ेगा। बोथ आर करेक्ट, both the ways are correct. But still, if you have any doubt, any query, you may ask. Well, if not, then I'll say insert after is very much similar to insert before. प्री पीटीआर की जरूरत नहीं है, टीआर के डेटा तक ट्रावर्स कर लो एंड देन इंसर्ट अ न्यू नोड आफ्टर दैट। टीआर के बाद में आप नए नोड को डाल दो, दैट इज वेरी मच इजी। टीआर के नेक्स्ट में आप क्या करोगे? नए नोड को डालोगे, लेकिन नए नोड के नेक्स्ट में एग्जिस्टिंग टीआर का जो नेक्स्ट है वो जाना चाहिए। And this you can write after traversal. You have that algorithm here. टीआर के डेटा तक ट्रावर्स कर लो और उसके बाद write those two statements. So this is insert after. The last was insert sorted. Now this is only possible when you maintain your linked list in a sorted order. अगर आपका लिंक लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है तभी ये ऑपरेशन वर्क करेगा, अदरवाइज नॉट। टू, 4 and 6 ascending order sorted data. Only in this case you can say I want to insert 3. कहां पे जाएगा? Before 4. insert before हो गया, insert before, लेकिन before what? Before any value which is greater than 3. Insert given value before any value which is having greater than 3 value. 3 से बड़ा जब भी मिलेगा आप रुक जाओगे। अगर आप वहां पे रुकते हो तो उसके पहले नया नोड डालना है। कैन बी डन नाउ। टीआर के नेक्स्ट के डेटा को कंपेयर करो, इफ इट इज ग्रेटर देन 3 तो रुक जाओगे, या तो फिर टीआर के डेटा को कंपेयर करो, इफ इट इज ग्रेटर देन 3 रुक जाओगे, लेकिन प्री पीटीआर की जरूरत पड़ेगी। So I believe you can also do this thing. अवेल इज नल ओवरफ्लो, वरना नया नोड लोगे अवेल के पास से और नए नोड का डेटा सेट करोगे। टिल दैट टाइम नो प्रॉब्लम।
What if user has given a value which is the smallest one? सबसे छोटी वैल्यू है यूजर ने जो दी, तो वो हो जाएगा इंसर्ट फर्स्ट। मतलब अगर स्टार्ट का डेटा ही नई वैल्यू से बड़ा है, पहले नोड का डेटा ही गिवन वैल्यू से अगर बड़ा है, तो नई वैल्यू जो है वो इंसर्ट फर्स्ट हो जाएगी, इंसर्ट फर्स्ट। अब अगर आपने पहले नोड का डेटा ऑलरेडी चेक कर ही लिया है, तो बाकी की प्रोसेस आप नेक्स्ट नोड से लोगे। यू आर गोइंग टू ट्रैवर्स योर लिंक लिस्ट फ्रॉम द सेकंड नोड। और अगर मुझे प्री पीटीआर लेना है तो मैं प्री पीटीआर स्टार्ट से आगे लेके जाऊंगा। देन व्हाट वी डू इज वी ट्रैवर्स while loop and we are going to traverse a linked list। ptr को नेक्स्ट पे लेके जाओगे, बिफोर दैट यू टेक बैकअप ऑफ ptr प्री ptr में। तो ये ट्रावर्सल प्रोसेस हो गया। कब तक ट्रावर्स करोगे? सो यू विल से अगर tr का डेटा गिवन वैल्यू, दिस शुड बी एनुअल, okay, it should be annual। if tr points to data is less than value, जब तक नोड का डेटा गिवन वैल्यू से कम है हम आगे बढ़ेंगे। अलोंग विद दैट हमें यह भी देखना है कि भाई पीटीआर जो है वो नल नहीं होना चाहिए, तब तक आप ट्रावर्स करोगे ना। व्हाट आई बिलीव दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, दिस शुड बी व्हाट, लेस देन इक्वल्स टू। अगर लेस देन इक्वल्स टू है तो इक्वल वैल्यू पीछे ऐड होगी, अगर इक्वल्स टू नहीं है देन सेम वैल्यू बिफोर ऐड होगी। अब ये समझना पड़ेगा सर ये क्या है, मतलब व्हाट इफ यू हैव 2 4 6 and 8, ये आपके पास है, और अगर यूजर बोलता है इंसर्ट 6, अब 6 को कहां डालोगे आप? एग्जिस्टिंग 6 के आगे या एग्जिस्टिंग 6 के पीछे? फर्क क्या पड़ता है? सॉर्टेड डेटा तो वही रहना है, राइट? फर्क क्या पड़ता है? अगर इफ यू ओनली फोकस ऑन द वैल्यू, देन 6 आगे डालो पीछे डालो, नथिंग हैपेंस, नथिंग डिफरेंस देयर। सो मान लो कि अगर पीटीआर डेटा इज लेस देन वैल्यू, जब तक लेसर है आप आगे बढ़ोगे, एंड जब इक्वल होगा तो रुक जाओगे। योर टीआर विल स्टॉप एट दिस प्लेस, और इसके बाद अगर 6 डालते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। और अगर इक्वल्स टू तक आप रन करते हो तो टीआर आपका जब ग्रेटर मिलेगा तब रुक जाएगा। सो एक्चुअली 6 इज दिस वन। आपका टीआर यहां पे है तो उसके आगे डालो, अगर आपका टीआर 8 पे है तो उसके आगे डालो, मतलब 6 यहां पे हो या यहां पे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड दैट्स द रीजन, अगर मैं इक्वल्स टू कंडीशन लिखूं या ना लिखूं, नो प्रॉब्लम देयर। we'll come to your point later, okay? So what happens here, अगर ptr null हो गया तो आपने पूरा लिंक लिस्ट ट्रैवर्स कर लिया। if your ptr is null, which means you traverse your entire list, तो insert last होना चाहिए। पीटीआर नल हो गया, प्री पीटीआर कहां पे है? पीटीआर अगर नल हो गया तो प्री पीटीआर कहां पे रहेगा? लास्ट नोड पे रहेगा। सो प्री पीटीआर नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, नया नोड कहां पे डाल दिया? लास्ट नोड के पीछे। सो दिस बिकम्स इंसर्ट लास्ट। अदरवाइज यू आर गोइंग टू इंसर्ट योर नोड समवेयर इन बिटवीन। इन बिटवीन मतलब
कहीं पे आपका टीआर है तो कहीं पे आपका प्री है, और उसके बीच में आपको नया नोट डालना है। प्री के नेक्स्ट में एन और एन के नेक्स्ट में टीआर आना चाहिए। प्री के नेक्स्ट में एन और एन के नेक्स्ट में टीआर। ठीक है, so that's your insert sorted algorithm. You traverse your entire linked list based on the given value, and then you decide आपको कहाँ पे insert करना है, आगे या पीछे। अगर आगे insert करना है तो प्री पीटीआर की ज़रूरत पड़ेगी, अगर पीछे insert करना है तो प्री पीटीआर की ज़रूरत नहीं है। बट दैट डिपेंड्स कि आप कंडीशन क्या लिखते हो। पीटीआर डेटा अगर कंडीशन लिखते हो तो आगे ऐड करना पड़ेगा। Simple. So here we complete all insert operations on singly linked list. इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई ऑपरेशन इंसर्ट के लिए आता है, आप बना सकते हो, देयर इज नो लिमिटेशन। We'll stop here for today, and in the next lecture we are going to have a look at delete operations. Just like insert, we have number of delete operations also. Delete first, delete last, delete before, delete after, delete at position. अब delete क्या करना है, कोई वैल्यू, कौन सी वैल्यू, फर्स्ट अकरेंस या ऑल अकरेंस? क्योंकि पॉसिबली आपके लिंक लिस्ट के अंदर वो वैल्यू एक से ज्यादा बार भी हो सकती है, तो आप क्या करना चाहते हो, फर्स्ट अकरेंस को डिलीट करना चाहते हो या सारे अकरेंस को? अब आप ये भी बोलते हो सर, आई वॉन्ट टू डिलीट सेकेंड अकरेंस, आई वॉन्ट टू डिलीट थर्ड अकरेंस, आई वॉन्ट टू डिलीट nth अकरेंस, बना लो फंक्शन, चलेगा। But these are the few delete operations, and what we'll do is we will see again few of these, maybe insert first, insert last, sorry, delete first, delete last, delete maybe before, and delete all occurrence. Let us see 4 delete operations remaining, up to you. So that's all for today. Thank you everyone for being part of this session. See you in the next lecture where we will see delete operations on singly linked list. Bye-bye.